the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were discussing about being perfect. पिछले हफ्ते हम सिद्ध होने के बारे में चर्चा कर रहे थे। Paul describes certain things that we need to do to be perfect. और पौलुस हमें बताता है कि सिद्ध होने के लिए कौन से काम हमें करने चाहिए। पौलुस बताता है The first thing we saw was to count all things worthless for the knowledge of Jesus Christ. सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह के ज्ञान के सामने हमें सारी बातों को व्यर्थ समझना होगा, वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। We don't get so attached to the things that we are diverted from our pursuit of Jesus Christ. हम जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारा ध्यान किसी और बात के पीछे आकर्षित नहीं होना चाहिए, दूसरी बातों के पीछे जाना नहीं चाहिए। Single-minded, single-hearted approach to God. हमेशा एक मन और एक चित्त होकर हम परमेश्वर के पीछे चलें। You don't give half your heart to Jesus and half the heart to the world. That's not the way. ऐसा नहीं कि आप आधा दिल संसार को दे और फिर आधा दिल यीशु को दे, ऐसा नहीं हो सकता है। You give all your time to your hobbies and your possessions and your family and your friends and all the things and give a small time to God, that's not enough. अगर आप अपनी हॉबी के लिए, अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आप जो कुछ पसंद करते हैं उसके लिए अपना सारा समय दे देते हैं, बस थोड़ा सा समय बचा हुआ जो है यीशु को देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। Compared to the knowledge of Jesus Christ and the pursuit of Jesus Christ, everything else should be like garbage. और देखा जाए तो यीशु मसीह का ज्ञान और यीशु मसीह के पीछे चलने की तुलना में बाकी सारी बातें बिल्कुल कचरा होनी चाहिए। That is how you develop a perfect mind. और इसी तरह से आप एक सिद्ध मन अपने अंदर में बनाते जाते हैं। The second thing we saw was और दूसरी बात जो हमने देखी है that it's not by your works that you become righteous, but by it's a gift of God. और आपके कामों के द्वारा आप धर्मी नहीं होते हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर का वरदान होता है। Your perfectness and your righteousness doesn't come because of you keeping a set of rules and laws. आपकी जो सिद्धता है या कहिए आपकी जो बातें हैं, ये तो इसलिए नहीं कि आप कुछ कानून या व्यवस्था मानते हैं, But it comes by faith in Jesus Christ. लेकिन ये तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण ही आती है। When you believe in the finished work on the cross, what Jesus did for us, you are given a gift of righteousness by God. जब आप यीशु ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, क्रूस के पूरे किए गए काम के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तब यीशु हमें धार्मिकता का वरदान देता है। God gives you His own righteousness, परमेश्वर अपनी धार्मिकता आपको देता है and you grow into that perfectness. As you believe and come by faith, you grow in that righteousness. और आप उस सिद्धता में बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आप विश्वास करते हैं तो आप उस धार्मिकता में भी बढ़ते जाते हैं। And we saw Abraham, he believed God and it was counted to him as righteousness. हमने ये भी देखा कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। And the same thing is imputed to us if we believe in Jesus Christ, what He has done for us. We are also counted righteous. और यही बात तो हमें भी दी गई है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें भी धर्मी गिना जाता है। The third thing that we need to have a perfectness, और तीसरी बात है आपको जो सिद्धता पाने के लिए जरूरी है, that is the desire and the hunger to know Him. और वो तो ये है कि आप उसे जानने की इच्छा रखे, भूख रखे, An intimate knowledge of Jesus Christ. यीशु मसीह के नजदीकी ज्ञान को पाने के लिए भूखे रहें। And that desire to know Him will never stop and you come to an end of knowing Him, but you will never come to that end throughout your life. और निश्चय उसे जानने की आपके अंदर जो इच्छा है वो कभी खत्म न होने पाए, और आप उसे कभी भी इतना नहीं जानेंगे कि बस अभी इसके ऊपर आप नहीं जान सकते। आपके जीवन के अंत तक आप उसे नए रूप में जानते रह सकते हैं। Paul, at the end of his life, after being such a great worker of God, said that I may know Him. और पौलुस इतना महान काम करने वाला, वो अपने जीवन के अंत में इस तरह से लिखता है कि मैं उसे जानूं। इस तरह से वो कहता है मैंने अब तक उसे नहीं जाना है। That desire to know Him should never cease from your life as long as you live. जब तक कि आप जीवित है, उसे जानने की आपके अंदर की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। And as you know Him, you will know the power of His resurrection to live a victorious life. और जैसे आप उसे जानते हैं तो निश्चय आप पुनरुत्थान की सामर्थ को जानेंगे कि आप एक विजयी जीवन जीने वाले हो जाएं। The power to overcome all the temptations in your life. आपके जीवन की सारी परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत होने की उस सामर्थ को आप जान पाएंगे। To become a perfect Christian. आप एक सिद्ध विश्वासी हो जाएंगे। You can grow into that. आप इसमें बढ़ते रह सकती हैं। And the fourth thing we saw was
that we must be ready to have fellowship in the sufferings of Jesus Christ. और चौथी बात जो हमने देखी है कि हमें यीशु मसीह के साथ में दुख उठाने के लिए निश्चय ही पूरी तरह से तैयार होना है। When we come to know Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, we come into the kingdom of light, हम ज्योति के राज्य में आ जाते हैं and the kingdom of darkness will hate you. और अंधकार का राज्य जो है वो आपसे नफरत करने लगता है। And Satan, who is in darkness, who is the prince of darkness, will hate the people of light. और शैतान जो कि अंधकार का राजा है, राजकुमार है, वो तो ज्योति के लोगों से नफरत करेगा। So there will be persecutions, there will be tribulation. तो निश्चय ही सताव होगा, निश्चय ही क्लेश होगा। You may get in different ways. Persecution can come in your job. शायद आपको ये अलग अलग तरीके से मिले। हो सकता है कि आपकी नौकरी पर आपको सताया जाए। You may not get your promotions. शायद हो सकता है कि आपको जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है Your benefits will be denied to you. और आपको जो लाभ मिलने चाहिए उसे आपको देने से इनकार किया जाता है। Maybe your friends will be against you. शायद आपके दोस्त आपके विरुद्ध में हो जाएं Often your family can come against you. और यहाँ तक कि कई बार आपका परिवार आपके विरुद्ध में आ सकता है The rest of your family doesn't believe in Jesus and you believe in Jesus. They all can turn against you. और बाकी परिवार यीशु पर विश्वास नहीं करता और आप केवल यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हो सकता है कि सारे लोग आपके विरुद्ध में आ जाएं। Sometimes it's very hard to pay that price. और कई बार इस तरह का दाम चुकाना तो सच में बहुत बहुत मुश्किल होता है। But if you have the desire, I want to know the fellowship of his sufferings. अगर आप में ये इच्छा है कि हाँ मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ, Because he loved me and he suffered for me, I will also love him, I will also suffer for him. उसने मुझसे प्रेम किया और उसने मेरे लिए दुख उठाया, तो मैं भी उससे प्रेम करूंगा और मैं भी उसके लिए दुख उठाते चले जाऊंगा। Then you will be a perfect man. तब आप एक सिद्ध मनुष्य बनेंगे You will not run away from the persecution that comes. और आने वाले सताव से आप कभी भी दूर नहीं भागेंगे। There are many times in a family, the father will be against the son, the mother will be against the daughter. कई बार ऐसा होता है कि परिवार में जो पिता है बेटे के विरुद्ध में होता है और माँ जो है बेटी के विरुद्ध में होती है, Because one of them has believed in Jesus Christ. क्योंकि इन दोनों में से किसी ने यीशु पर विश्वास किया। Jesus himself said, यीशु ने स्वयं ये कहा है, I did not come to bring peace but a sword. मैं शांति लाने के लिए नहीं, लेकिन मैं तो तलवार लाने के लिए आया हूँ। Because when a person believes in Christ, there will be hatred against him in his own family. क्योंकि जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसका खुद का परिवार उससे नफरत करने लगता है, वो उससे बैर रखने लगता है। A man or a woman, his own enemies will be from his family. और यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष जो है वो तो उसके खुद के परिवार से लोग शत्रु बन जाते हैं It will be very painful. और ये बहुत ही पीड़ादायी होता है। Imagine when you are rejected by your own father, mother or brothers, sisters, how painful it is. कल्पना कीजिए जब आपके माता पिता या आपके खुद के भाई बहन ने आपका इनकार किया होगा, उस समय आपको कितना दर्द हुआ होगा। But when that happens, लेकिन जब ये होता है, remember what Paul said. याद रखिए पौलुस क्या कहता है, I want to have fellowship in the sufferings of Jesus. मैं तो यीशु के दुख उठाने में संगति करना चाहता हूँ, I will not turn back. मैं उससे दूर नहीं हटूंगा। Follow Jesus. Whoever, if no one comes with me, yet I will follow. और चाहे मेरे साथ में कोई भी नहीं आए तो भी मैं यीशु के पीछे चलते रहूंगा। God will love you परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, and He will bless you. वो आपको आशीष देगा, His angels will be with you उसके स्वर्गदूत आपके साथ में होंगे and will help you to get over that painful period in your life. और वो आपकी मदद करेंगे कि आपके जीवन में इस पीड़ादायी दर्ददायी समय में से आप बाहर आ जाएं। If you stand for Him in spite of all the persecution, God will really bless your life. और इतने सारे सताव के बावजूद भी अगर आप उसके लिए डट कर खड़े रहें तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में आपको बहुतायत से आशीष A देगा। perfect man will fix his mind that I will go through whatever sufferings is required, I will go through it. और सिद्ध मनुष्य बस अपने मन में इस बात को ठान लेता है, चाहे मैं जितने भी दुख उठाऊं लेकिन इसमें से निश्चय ही मैं होकर चला जाऊंगा। Not only in good and sweet times, but also in hard times, I will follow Jesus. केवल अच्छे और मीठे समय में ही नहीं लेकिन बुरे और मुश्किल समय में भी मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। That's a perfect mind. और यही तो सिद्ध मनुष्य है। Now we come to the fifth one. अब हम यहाँ पर पांचवी बात को देखते हैं, What it means to be a perfect man. एक सिद्ध मनुष्य होने का मतलब क्या होता है। Philippians chapter 3 verse 12. फिलिपियो अध्याय 3 वचन 12 कहता है, Not as though I had already attained or were already perfect, but I follow after, that I may apprehend that for which I also am apprehended of Christ Jesus. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 12 में पौलुस इसी तरह से कहता है। And verse 13 says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind,
and reaching forward to those things which are before, I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. वचन 13 कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। And verse 15 Paul says, so let us therefore as many as be perfect be thus minded. और वचन 15 में कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे। यहाँ पर पौलुस इस तरह से कहता है, मैं जो सिद्ध हैं यही विचार रखें। So this fifth one is pressing on after Jesus Christ. तो ये जो पांचवी बात है वो तो बस यही है कि यीशु मसीह के पीछे हम चलते रहें। See, Jesus caught us and saved us to fellowship with him. यीशु ने हमें पकड़ लिया, उसने हमें उद्धार दिया ताकि हम उसके साथ में संगति कर सके। And it is his plan that we should be transformed into his likeness. और ये तो उसकी योजना है कि हम उसकी समानता में बदलते चले जाएं। That's why when Jesus left this world, और इसीलिए जब यीशु इस संसार में अपनी सेवकाई पूरी करके चला गया, the word of God says he gave gifts unto the church. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कलीसिया को वरदान दिए, बहुत से वरदान दिए। He gave pastors and teachers and apostles and healing evangelists, so many gifts he gave. उसने प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक, इस तरह से बहुत से वरदान उसने कलीसिया को दिए, So that the church will be built up into the likeness and maturity of Jesus Christ. कि कलीसिया जो है वो तो यीशु मसीह की ज्योति में, परिपक्वता में बढ़ती चली जाए। So Jesus caught us for this purpose that we should be like him. और यीशु ने हमें इसी उद्देश्य के लिए पकड़ा कि हम बिल्कुल उसी के समान हो जाएं। He caught us so that in this world we'll be showing the love of Jesus to the rest of the world. उसने हमें पकड़ लिया ताकि इस संसार में हम यीशु के प्रेम को बाकी दूसरे सभी लोगों को दिखा सकें। He saved us so that we can be a light to others. उसने हमें उद्धार दिया ताकि हम लोग दूसरों के लिए ज्योति हो सकें, We can be like Jesus, हम यीशु के जैसे हो सकें, filled with his love, हम उसके प्रेम से भर जाएं, filled with his goodness, उसकी भलाई से हम भर जाएं, walking in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह में चलते जाएं। And that's what he caught us for. और उसीलिए उसने हमें पकड़ा है। Now we should also pursue that same thing, that we can also be like that. और हमें भी बस इन्हीं बातों के पीछे चलना है ताकि हम भी वैसे ही हो जाएं। Often it happens that he has a great plan for us, but we don't come into that plan. अक्सर ऐसा होता है कि उसके पास हमारे लिए महान योजनाएं होती हैं, लेकिन हम लोग उस योजना में नहीं आते हैं, Because we are not pursuing after him. क्योंकि हम उसके पीछे नहीं चलते हैं। Sometimes it is a lack of knowledge. कई बार ज्ञान की कमी होती है, People have not studied the word of God. लोगों ने प्रभु वचन का अध्ययन नहीं किया, And they don't know how we are supposed to be. और वो नहीं जानते कि हमें कैसे होना चाहिए, So they live a very shallow Christian life. और इसलिए वो बहुत ही उथला सा मसीह जीवन जीते They are हैं। not pursuing to be more God-like and more Christ-like in their life. वो अपने जीवन में परमेश्वर के जैसे या फिर और ज्यादा मसीह के जैसे जीने के लिए नहीं बढ़ते। Paul says, I am not already perfect, और पौलुस कहता है, मैं पहले से सिद्ध नहीं हूँ, but I press on लेकिन मैं आगे बढ़ते जाता हूँ that I may apprehend the thing that Christ apprehended me for. कि मैं उन बातों को जानूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। I don't want to miss that calling. मैं उस बुलाहट को चूकना नहीं चाहता हूँ। I want to be the fullest of what God had planned for my life. I want the fullness of it. और मैं तो उसकी भरपूरी चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो योजना बनाई हुई है। You know, there used to be an old proverb my father used to quote. देखिए, एक पुराना नीति वचन था, कहावत थी जो मेरे पिताजी कहते थे। You aim at a gown of gold and you may at least get one sleeve of it. हमें सोने के एक बड़े गाउन के लिए लक्ष्य बनाकर रखना है, और जब हम काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि हम उसकी केवल एक बाह ही पाएं। So that was, a worldly way of looking at it. और ये तो इसे देखने का सांसारिक तरीका है। You aim for high and you may get something out of it. आप बहुत बड़ा लक्ष्य रखें और हो सकता है कि आपको उसमें से बहुत ही कम हासिल हो, But in the Christian view, it's not like that. लेकिन मसीह दृष्टिकोण में ये ऐसा नहीं है। If you want to be perfect, आपको सिद्ध होना है, press on for the full thing, not for just a piece of it. तो फिर आप उस पूरी बात के लिए आगे बढ़ते चले जाए, केवल उसका एक छोटा सा भाग पाने के लिए न बढ़ें। Full thing of it is that you must be like Jesus Christ. और इसकी परिपूर्णता तो बस यही है कि आप यीशु के समान हो जाएं। God has called us to be examples of Jesus to the whole world. परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम पूरे संसार के सामने यीशु के जैसे आदर्श बने। God himself said, स्वयं परमेश्वर ने कहा है, be holy because I am holy. तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Like how God is holy, he wants us to be holy. परमेश्वर जैसा पवित्र है वो चाहता है कि हम भी वैसे ही पवित्र हो जाएं। As Jesus was full of love, he wants us to be full of love. जैसे यीशु प्रेम से भरा हुआ है, वो चाहता है कि हम भी
प्रेम से भर जाएं। As Jesus forgave whoever hurt him and crucified him, he wants us to forgive everyone. और जैसे यीशु को जिसने भी चोट पहुंचाई उसने उन्हें क्षमा किया, वो चाहता है कि हम भी उन सभी लोगों को क्षमा करें। The Son of God, the creator of the universe, परमेश्वर का पुत्र, पूरे संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, they spat on his face. वो तो उसके मुंह पर थूकने लगे थे, They beat him. उन्होंने उससे बहुत मारा। The creator himself और देखिए ये तो सृष्टिकर्ता था, yielded himself, submitted himself to the hands of men उसने खुद को मनुष्यों के हाथ में सौंप दिया to be crucified, कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, to be nailed to the cross, कि वो क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ दिया जाए, suffered intense pain, और बहुत ज्यादा दर्द उसने सह लिया। and yet on the cross, और फिर भी क्रूस पर he said, Father, forgive them, they don't know what they're doing. उसने कहा, पिता तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे कहा। What a love, कितना महान प्रेम, what deep love. कितना गहरा प्रेम है ये। He could forgive all those who did whatever they did against him. उन्होंने उसके विरुद्ध में जो कुछ भी किया उन सभी को वो माफ कर सका। And that's how he wants us to be, और वो हमारे साथ में बिल्कुल ऐसे ही चाहता है, in the same likeness of Jesus, यीशु की उसी समानता में, able to forgive everyone whatever they do against him, और जिन लोगों ने उसके साथ चाहे जो भी किया उसके बावजूद उन्हें क्षमा करना चाहा, not having anger against anybody. किसी के भी विरुद्ध में कोई क्रोध नहीं रखा, Because we understand, as Jesus saw, that they don't know what they're doing. क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, जैसे यीशु ने कहा कि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। We think that they know what they're doing deliberately. We think like that. हम ये सोचते हैं कि हाँ उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं। Whatever people do against you is because there's a devil behind them pushing them to do it against you. और लोग आपके विरुद्ध में जो कुछ भी करते हैं, इसके पीछे कारण यही है कि शैतान उनके पीछे और उन्हें आगे भेजता है कि वो आपके विरुद्ध में ये सब करते जाएं। They're in the kingdom of darkness, वो तो अंधकार के राज्य में हैं, and they're under the power of the prince of darkness. और वो तो अंधकार के उस हाकिम की सामर्थ्य में, उसके वश में पड़े हुए हैं। So he will push them against you. तो वो आपके विरुद्ध में उन्हें जरूर आगे भेजेगा, But you have to see what is behind them. लेकिन आपको देखना होगा कि इसके पीछे क्या है। And don't get angry with them, but you forgive them because they don't know what they're doing. और आप उनके ऊपर क्रोधित ना हो, आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। They don't know Satan is behind them. वो नहीं जानते कि शैतान इसके पीछे पड़ा है। But since we know, लेकिन जबकि हम जानते हैं, so we have to forgive. तो हमें माफ करना होगा। We don't keep anger. हम क्रोध न रखें। Like Jesus, यीशु के जैसे ही love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम करें। Like Jesus, यीशु के जैसे ही walk in light. आप ज्योति में चलते जाएं, Walk in holiness. आप पवित्रता में चलते जाएं, Be like Jesus. यीशु के जैसे हो जाएं, Think like Jesus. यीशु के जैसे सोचें, Talk like Jesus. यीशु के जैसे बातें करें। Don't talk all filthy things. Jesus would not have done that. आप इन सारी बेकार की बातों को न कहें, स्वयं यीशु कभी इससे नहीं कहता। Go to places where Jesus would go. आप ऐसी जगह पर जाए जहां पर यीशु जा सकता है। Where he wouldn't go, you also don't go. वो जहां पर नहीं जाना चाहता है, आप भी उस जगह पर न जाएं। Be like Jesus. आप यीशु के जैसे हो। Why he caught you? You be like that. To the purpose that he caught you, the same purpose you be like that. उसने आपको क्यों पकड़ा कि आप वैसे हो जाए, इसी उद्देश्य के लिए उसने आपको पकड़ा है। He has called us to be a peculiar people, उसने हमें एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में बुलाया है। a royal priesthood, हम तो राजपदधारी याजक हैं। a unique people. हम तो बहुत ही अद्भुत लोग हैं, And that's how we should be. और हमें ऐसे ही होना चाहिए। In this world, इस संसार में we have to show the love of Jesus. हमें यीशु के प्रेम को दिखाना ही होगा, Be like him. उसके जैसे हो जाएं। And the love of Jesus will draw people to him. और यीशु का जो प्रेम है लोगों को उसकी ओर लेकर आएगा। More than your preaching, आपके प्रचार से भी बढ़कर the love of God in your life will draw people. आपके जीवन में परमेश्वर का जो प्रेम है, यीशु का प्रेम है, वो लोगों को खींच कर लाएगा। So Paul had the desire. और इसीलिए पौलुस में यही तो इच्छा थी। I press on. वो कहता मैं आगे बढ़ता हूँ, I don't give up. मैं हिम्मत नहीं हारता। Throughout my life, I press on to reach that ultimate level that I can reach in Christ. मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं यीशु मसीह में उस ऊंचाई की जगह पर पहुंच सकूं। He was not satisfied with just, a small Christian life, just reading the Bible, going to church, that's it. He was not satisfied with that. वो इस बात में एक छोटे मसीह जीवन में खुश नहीं था कि बस बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, चर्च में जाए। इन बातों में ही वो संतुष्ट नहीं था। What God has planned for my life, I want the full thing for my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो भी योजना बनाई है, उसकी मैं परिपूर्णता को पाना चाहता हूँ। I don't want to miss the path. मैं उस मार्ग को खोना नहीं चाहता हूँ।
I don't want to go to heaven and regret, array, I have not done what God has called me to do. मुझे स्वर्ग में जाकर इस तरह से खेद नहीं करना चाहिए कि अरे परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया उसे मैंने नहीं किया। I want God to hear God say, well done, my son. मैं बस परमेश्वर की ओर से यही सुनना चाहता हूँ कि मुझसे कहे कि मेरे बेटे तूने अच्छा काम किया है। That's why he says, I press on towards the mark of the high calling of God in Christ. और इसीलिए वो कहता है कि मसीह यीशु में जो मेरी ऊंची बुलाहट है उस निशाने की ओर मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ, पौलुस कहता है। All of us who have known Jesus Christ, हम सब लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, and those of you who know him, he has a calling for your life. आप लोग जो उसे जानते हैं, आपके जीवन के लिए उसके पास में बुलाहट है। You are not an accident on this earth. आप इस पृथ्वी पर ऐसे एक्सीडेंट के रूप में नहीं आए, You didn't just come by chance. आप ऐसे अचानक संजोग से नहीं आए हैं। God has something in this world that you can do that others cannot do. परमेश्वर के पास आपके लिए ऐसा काम है जो केवल आप कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। God has something that I can do that others cannot do. परमेश्वर के पास ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। Every one of us is important in the plan of God. हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण है, But you should have the mind that Paul had. लेकिन हमारे पास वो मन होना चाहिए जो पौलुस में था। I press on to know, to reach the full level of God's calling. I press on to that. परमेश्वर की उस बुलाहट के पूरी ऊंचाई को जानूं, इसके लिए मैं आगे बढ़ते चले जाता हूं, मैं अपने निशाने की ओर आगे बढ़ते जाता हूं। And when we have that desire, और जब हमारे पास में ये इच्छा होती है we will be perfect. तो हम सिद्ध हो जाएंगे। Whatever God has called you, will be able to do it. जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया उसे आप कर पाएंगे। Your nature will change, your life will change. आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। Because if you seek and search for it with all your heart, you will find it. अगर आप उसे अपने पूरे दिल से खोजेंगे, ढूंढेंगे तो जरूर आप उसे पाएंगे। And you will find that your nature is being changed into the nature of Jesus. और आप पाएंगे कि आपका स्वभाव बदलकर यीशु का स्वभाव हो गया, Because you're pulling in the right direction. क्योंकि आप तो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। You're pressing on to the mark. आप उस निशाने की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। It's like an athletic race. ये तो मानो एथलेटिक रेस के जैसे होता है। Until the last line, people don't give up running. They run as hard as they can till the last line. जब तक कि वो लास्ट लाइन तक न पहुंचे, फिनिश लाइन तक न पहुंचे, लोग बस दौड़ते चले जाते हैं, अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा देते हैं। They don't give up in the middle and say, okay, I've finished half the race, that's enough. They don't stop like that. वो बीच में इस तरह से नहीं कहते हैं कि चलो मैंने आधी रेस तो पूरी कर दी है, ऐसे रुक जाता हूं, नहीं कहते। In fact, the hardest they push is towards the end. They'll push as hard as they can. और जैसे वो अंत की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो अपनी सबसे ज्यादा ताकत, अपनी सबसे ज्यादा शक्ति वहां पर लगा देते हैं। And with all their effort, they will cross the finish line. और अपने पूरे परिश्रम के साथ में उस फिनिश लाइन को वो पूरा करते हैं। Then they get the crown. और फिर उसके बाद में ही उन्हें वो मुकुट मिलता है। Paul says, I have fought the good fight. पौलुस कहता है कि मैंने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है, I've kept the faith. और मैंने अपने विश्वास को रखा है, I have run the race. मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। Now there is laid up for me a crown of righteousness. अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है। We are also in a race. हम भी एक दौड़ में ही हैं। Keep your eyes on Jesus. आप अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें, Press on आप आगे बढ़ते चले जाएं to be more like Jesus. कि आप यीशु के जैसे और ज्यादा होते जाएं। Every day when you see your life, Lord, this thing is not right. I want it out of my life. I want to be like Jesus. हर एक दिन जब आप अपने जीवन को देखते हैं, आप कहें कि प्रभु मैं अपने जीवन में ये नहीं चाहता हूं, मैं यीशु के जैसे होना चाहता हूं, इसे निकाल देना चाहता हूं। I want to be more holy. मुझे और ज्यादा पवित्र होना है, I want to forgive everyone. मुझे सभी को माफ करना है, I want to love everyone. मुझे सभी से प्रेम करना है। Press on after God. आप बस परमेश्वर के पीछे चलते चले जाएं। And God will bring it to pass in your life. परमेश्वर इसे आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। You will be a perfect man. आप एक सिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे, You will be a perfect woman. आप एक सिद्ध स्त्री हो जाएंगी, Because you have the right direction, you have the right desire in your heart. क्योंकि आप तो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपके दिल में बिल्कुल सही इच्छा है। Don't be satisfied with what you have achieved so far. आपने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उसमें आप संतुष्ट ही न रहें। Maybe you have done a lot of things for the kingdom of God. शायद हो सकता है कि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ किया होगा। Lord, I want to do more for you. हे प्रभु, मैं तेरे लिए और ज्यादा करना चाहता I हूँ। want to complete my life running as hard as I can, finishing it. मैं अपने जीवन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दौड़ना चाहता हूँ, इसे बहुत अच्छी तरीके से मैं पूरा करना चाहता हूँ। I don't want to take retirement. मैं रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता हूँ। I want to finish the course full speed. मैं पूरी रफ्तार से अपने इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ। God will bless your desire for that. परमेश्वर इसलिए आपकी इच्छा को आशीष देगा। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, have you joined that race? Have you started that race? क्या आपने ये दौड़ शुरू की है? क्या आप इसमें जुड़ चुके हैं? The life that we live is a race
for eternity. और हम जो जीवन जी रहे हैं ये तो निश्चय ही अनंत काल के लिए एक रेस की जैसी है। How we run that race determines where you'll go. हम किस तरह से इस दौड़ को दौड़ते हैं ये निश्चित करता है कि हम कहाँ पर जाएंगे। If you run the race according to the word of God as God designed, you will go to heaven. अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार दौड़ते हैं तो निश्चय ही आप स्वर्ग में जाएंगे। But if you don't run the race and you do whatever you want, you will go to hell. लेकिन अगर आप दौड़ नहीं दौड़ते हैं जैसे चाहे वैसे ही रहते हैं तो आप नरक में जाएंगे। There are only two places. केवल दो ही जगह हैं, Heaven where God dwells, स्वर्ग जहाँ पर परमेश्वर रहता है, where He wants you to come there, जहाँ वो चाहता है कि आप वहां पर रहें, or hell where Satan dwells. या फिर नरक जहाँ पर शैतान रहता है। Place of horrible torment ये तो सच में बहुत ही भयानक सताव की जगह है and everlasting punishment. और यहाँ पर तो अनंत काल का दंड है। Why do you want to go to hell? आप नरक में क्यों जाना चाहते हैं? Anybody in his right mind will not want to go to that horrible place. कोई भी व्यक्ति जो सही आपे में है कभी भी इस भयानक जगह पर जाना नहीं चाहेगा। Make a right choice. आप बिल्कुल सही चुनाव कर लें। Give your heart to Jesus Christ. आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दें, Then you can start your race in the right direction. तो आप अपनी दौड़ को बिल्कुल सही दिशा में शुरू करेंगे। The starting point of the race is when you give your heart to Jesus Christ. इस दौड़ की शुरुआत की जगह तो वो है जहाँ पर आप अपना दिल प्रभु यीशु को देते हैं। If you do not accept Jesus Christ, you have never entered the race. अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आप इस रेस में अब तक के हो जाएं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। God bless you.